السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ دوستو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے التتمش کی بایوگرافی کور کی تھی۔ التتمش 25 سالوں تک دلی سلطنت پر حکومت کرتا ہے اور منگولوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنے کئی دشمنوں کو کنارے لگا کر دلی سلطنت کو مضبوط کرتا ہے۔ 1236 عیسوی میں جب التتمش کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دلی سلطنت ایک ایتہاسک موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ دلی سلطنت پر ایک عورت رجیات الدنیا و الدین، جسے ہم رجیہ سلطان کے نام سے جانتے ہیں، وہ حکومت کرتی ہے۔ کیا تھی رجیہ سلطان کی کہانی؟ کیا سچ میں اس نے اپنے کالے غلام یاقوت سے ناجائز سمبند بنائے تھے؟ اور پھر کیوں رجیہ نے اپنے ہی دشمن التونیا سے شادی کر لی تھی؟ سب جانیں گے، بس غور سے آخر تک یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ دوستو آپ ویڈیو لائک نہیں کرتے، لائک کیا کیجیے، آپ ہی کے لیے اتنی محنت کر کے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ رجیہ کا جنم سلطان التتمش کے گھر 1205 عیسوی میں ہوا تھا۔ التتمش قطب الدین ایبک کا غلام تھا اور رجیہ کی ماں ترکان خاتون قطب الدین ایبک کی بیٹی تھی۔ ویسے تو التتمش کے کئی بیٹے تھے، مگر سب کے سب نالائق اور عیاش تھے۔ سلطان بننا تو دور، ان میں صوبیدار بننے تک کی صلاحیتیں بھی نہیں تھی۔ اسی لیے التتمش اپنے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر 1229 عیسوی میں ہی نصیر الدین محمود کی موت ہو گئی۔ اب التتمش پل پل اس سوچ میں پریشان رہتا کہ میرے بعد میری اتنی بڑی سلطنت کو کون سنبھالے گا۔ التتمش نے اپنی بیٹی رجیہ سلطان کو بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی زبردست طریقے سے سکھا دی تھی، یہاں تک کہ رجیہ اپنے پتا التتمش کے ساتھ رہ کر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے وہ بھی سیکھ چکی تھی۔ رجیہ بھلے ہی ایک عورت تھی، مگر وہ اس سمے کے بڑے بڑے مرد حکمرانوں کے برابر تھی، اور اس کی اسی خوبی نے اسے دلی سلطنت کی سلطان بنا دیا۔ مگر اپنے کالے غلام سے محبت کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ 1231-32 میں التتمش گوالیار کی بغاوت ختم کرنے نکل جاتا ہے اور اپنے پیچھے رجیہ کو سلطنت سنبھال جاتا ہے۔ 1 سال تک رجیہ سلطنت کو اتنی کشلتا اور مہارت سے سنبھالتی ہے کہ لوگ رجیہ کو اگلی سلطان سمجھنے لگتے ہیں، اور التتمش بھی رجیہ کی قابلیت کو دیکھ کر اسے اپنی جانشین بنانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ مگر دلی سلطنت کے 39 ترک سرداروں کی منڈلی نے، جسے التتمش نے خاص اپنے لیے بنایا تھا، التتمش کے اس فیصلے کا وروध کیا اور التتمش سے کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کے کئی بیٹے زندہ ہیں، آپ انہی میں سے کسی کو سلطان بنائیے، رجیہ ابھی سلطان بننے کے لائق نہیں ہے۔ التتمش کہتا ہے، میری بیٹی رجیہ میرے سارے بیٹوں سے زیادہ سلطان بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ یہیں سے ان ترک سرداروں اور رجیہ کے بیچ 36 کا آنکڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جب 1236 عیسوی میں التتمش کی موت ہوتی ہے، تب ترک سردار رجیہ کی جگہ التتمش کے ایک بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو سلطان بنا دیتے ہیں۔ فیروز شاہ نالائق اور عیاش سلطان تھا، وہ حکمرانی کرنے کے لائق نہیں تھا، اسی لیے اس کی ماں شاہ ترکان فیروز شاہ کے پیچھے سے حکمرانی کرتی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹے کی حکمرانی نے جنتا پر اتیاچار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور دونوں نے ان سبھی سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جنہوں نے رجیہ کو سلطان بنانا چاہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب رجیہ نے دلی سلطنت کی سلطان بننے کی قسم کھائی اور اکیلے ہی سلطان اور ترک سرداروں سے بھڑ گئی۔ ایک عورت ہونے کے باوجود رجیہ کو کسی بھی طرح سے کم نہیں ہانکا جا سکتا۔ رجیہ میں وہ سبھی گن تھے جو ایک مرد سلطان میں ہوتے ہیں، مگر کچھ برے اور غلط کام بھی رجیہ کے ہاتھوں سے ہوئے تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان بننے کے کچھ ہی مہینوں بعد سلطان فیروز شاہ کوہرام کی ایک بغاوت ختم کرنے نکل گیا، اور پیچھے اس کی ماں شاہ ترکان دلی میں رجیہ کو مارنے کی سازش رچنے لگی۔ رجیہ اسی موقع کی تلاش میں تھی، اور پھر رجیہ نے اپنا کام شروع کیا۔ جمعے کی نماز کے وقت رجیہ اچانک میدان میں آ کر سلطان فیروز شاہ اور اس کی ماں شاہ ترکان کی کالی کرتوتوں کی پول کھولنے لگی اور اپنے سلطان ہونے کا دعویٰ کرنے لگی۔ یہ حالت دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ شاہ ترکان کو کچھ سمجھ آتا اس سے پہلے ہی
रजिया का काम बन चुका था। जनता अब सुल्तान फिरोज शाह और उसकी मां के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जनता ने शाह तुर्कान को मारने के लिए उसके महल पर हमला कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रजिया में लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कितनी जबरदस्त काबिलियत थी। रजिया ने सेना और कुछ सरदारों की मदद से गद्दी हासिल कर ली और इस तरह रजिया भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। वो तुर्क सरदार जो रजिया के खिलाफ थे, उनमें से कई रजिया के साथ मिल गए और कुछ को रजिया ने मरवा दिया। फिरोज शाह जब वापस दिल्ली लौटा तो उसे अच्छा खासा सरप्राइज मिला। रजिया ने फिरोज शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और कुछ वक्त बाद दोनों माँ बेटे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आपको इस बात पर जरूर गौर फरमाना चाहिए कि सुल्तान बनने से पहले रजिया एक ठीक ठाक दीनी औरत थी, पर्दा भी करती थी। सुल्तान बनने के बाद भी रजिया जब दरबार में जाती तो भी पर्दा करती। उसके और उसके मर्द दरबारियों के बीच भी एक पर्दा होता, जिसके परे से ही वो बातचीत किया करती थी। रजिया के साथ सिर्फ औरतें ही रहती थी, मगर ये माहौल रजिया को रास नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे औरत होने की वजह से सल्तनत पर मेरी दबंगई, मेरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बस फिर क्या था, रजिया ने इस्लाम की तालीमात को दरकिनार कर बेपर्दगी अपना ली। वो अपने आप को मर्दों जैसा दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने मर्द सुल्तान जैसे कपड़े, लबादा और टोपी पहनना शुरू कर दिया। खुले मुंह वो अब दरबार में मर्दों के सामने जाने लगी। रजिया की इन करतूतों की वजह से आम जनता और सल्तनत के सरदारों में उसके खिलाफ विरोध पनपने लगा था। इसके अलावा रजिया एक सुल्तान होते हुए अपने एक काले गुलाम जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत कर बैठी थी। वो मोहब्बत थी या नाजायज संबंध, पता नहीं। याकूत एक हबसी काला गुलाम था जिसे रजिया ने अपना पर्सनल गुलाम बना लिया। मोहब्बत का खुमार इस कदर चढ़ा कि रजिया ने गुलाम याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी बना दिया। एक हबसी काले गुलाम का यूं इतने बड़े ओहदे पर फाइज होना तुर्क सरदारों को रास नहीं आ रहा था, जबकि रजिया याकूत पर और ज्यादा मेहरबान होने लगी। रजिया ने याकूत को और बड़ा ओहदा देकर अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख लिया। जब भी रजिया घोड़े पर बैठती तो याकूत उसे उसकी बगलों से पकड़कर घोड़े पर बैठने में मदद करता। अब रजिया और याकूत हर पल साथ रहने लगे। इतना सब होने के बाद तो रजिया और याकूत के नाजायज संबंधों पर सवाल उठना लाजमी था। तुर्क सरदारों ने इसी मौके का फायदा उठाकर रजिया को बदनाम करके सल्तनत की गद्दी से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रजिया ने अपने और तुर्क सरदारों के बीच दुश्मनी की एक और खाई खोदकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दरअसल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदे पर तुर्क जाति के ही लोग फाइज थे, मगर रजिया ने तुर्क सरदारों को हटाकर अलग अलग जाति के लोगों को सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे देना शुरू कर दिया। खासकर अपने गुलाम याकूत को अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया था। तुर्क सरदारों की सत्ता से यूं बेदखली रजिया के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। तुर्क सरदारान एक हो गए और रजिया सुल्तान का तख्ता पलट करने की साजिशें रचने लगे। इन सरदारों में मोहम्मद जुनैदी नामी सरदार ने भी रजिया का विरोध किया था। जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर रह चुका था। जुनैदी ने अपने साथ कुछ सरदारों को भी मिला लिया, जिनमें बदायूं का सूबेदार मोहम्मद सालारी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खान अयाज, हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कूची और लाहौर का सूबेदार अलाउद्दीन जानी थी। इन सब ने मिलकर रजिया को मारने की प्लानिंग बनाई। इन लोगों ने अलग अलग वक्त पर रजिया सुल्तान पर हमला किया, मगर रजिया सुल्तान के सामने टिक नहीं पाए। मोहम्मद सालारी और कबीर खान अयाज ने जंग शुरू होते ही रजिया सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए और रजिया के ही साथ जाकर मिल गए। अब ये दोनों रजिया के साथ मिलकर बाकी सरदारों को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। सैफुद्दीन कूची और अलाउद्दीन जानी को पकड़कर रजिया ने कत्ल करवा दिया, जबकि मोहम्मद जुनैदी जान बचाकर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था और वहीं उसकी मौत हुई। इन सरदारों की मौत के बाद तुर्क सरदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए एक आखिरी और खतरनाक साजिश रचते हैं। तुर्क सरदार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बगावत करने पर आमादा कर लेते हैं। अल्तुनिया 1240 ईस्वी में रजिया के खिलाफ बगावत छेड़कर जंग का ऐलान कर देता है।
रजिया सुल्तान को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है कि ये एक साजिश है और वो इस साजिश का शिकार होने वाली है। रजिया सुल्तान अल्तुनिया से जंग करने निकल पड़ती है। इस जंग में उसका प्रेमी गुलाम याकूत भी उसके साथ होता है। जंग में याकूत मारा जाता है। रजिया याकूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने होशो हवास खो बैठती है। रजिया जंग करने की हालत में नहीं रहती और इसी का फायदा उठाकर अल्तुनिया रजिया को पकड़कर अपने महल ले आता है और जिंदान में डाल देता है। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है कि रजिया को अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया है, तो दिल्ली सल्तनत के तुर्क सरदार इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को सुल्तान बना देते हैं। तुर्क सरदारों की साजिश कामयाब होती है। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने अल्तुनिया से कहा था कि अगर तुम रजिया को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भी दिल्ली सल्तनत में से हिस्सा देंगे। मगर बाद में तुर्क सरदारों ने ऐसा नहीं किया और आपस में ही दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे बांट लिए। राजनीति में ऐसा ही होता है। इधर से जब ये खबर रजिया सुल्तान तक पहुंची कि तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को सुल्तान बना लिया है, तो रजिया और अल्तुनिया एक हो गई। रजिया ने अपनी खूबसूरती से अल्तुनिया को माइल किया या फिर दोनों ने सत्ता के लालच में एक दूसरे से शादी की, क्या हुआ पुख्ता अंदाजा नहीं है, मगर दोनों दुश्मनों ने शादी कर ली और सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्तुनिया और रजिया की सेना में खोखर, जाट और राजपूत शामिल थे। सितंबर अक्टूबर 1240 में जंग होती है और बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया को हरा देता है। दोनों जान बचाकर जंग से भाग जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बीच जंगल में हिंदू डाकुओं के एक गिरोह द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की मौत पर एक और कहानी मशहूर है। वो ये कि जंग से भागकर रजिया सुल्तान जंगल में थक हार कर एक पेड़ के सहारे सो जाती है। एक गडरिया जब वहाँ से गुजरता है तो रजिया सुल्तान को देखकर उसके पास आ जाता है। चूँकि रजिया मर्दों का लिबास पहना करती थी, इसीलिए पहले तो उस गडरिये को लगा कि ये कोई मर्द है, मगर अचानक रजिया के कीमती जेवरात उस गडरिये को नजर आ जाते हैं और इन जेवरातों के लालच में वो गडरिया रजिया सुल्तान की हत्या करके वहीं दफना देता है। मगर जब वो गडरिया उन जेवरातों को बेचने बाजार जाता है तो जोहरी को उन जेवरातों में से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलती है। वो जोहरी समझ जाता है कि ये चोरी का सामान है और फिर वो सिपाहियों को खबर कर देता है। सिपाही उस गडरिये को पकड़कर उसी जगह ले आते हैं जहां उसने रजिया सुल्तान को दफनाया था और इस तरह रजिया सुल्तान एक गुमनामी की मौत मरते मरते बचती है। रजिया सुल्तान की कब्र आज भी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मोहल्ला बुलबुली खाने की तंग गलियों में जर्जर हालत में मौजूद है। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अच्छे और बुरे दोनों काम किए। सत्ता के लिए उसने जो गलत कदम उठाए उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता, मगर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया बहादुर और अक्लमंद सुल्तान बनकर उभरी थी। रजिया को इल्म से मोहब्बत थी। उसने कई स्कूल, मदरसे, मस्जिद, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रजिया के बाद बहराम शाह 2 साल तक सुल्तान बना रहा और 1245 ईस्वी में उसी की सेना ने उसकी हत्या कर दी। तुर्क सरदारों ने फिर अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया। ये अलाउद्दीन मसूद उसी फिरोज शाह का बेटा था जिसे रजिया ने मारकर सत्ता हासिल की थी। 1242 से 1246 तक ये नाकारा सुल्तान अलाउद्दीन मसूद दिल्ली सल्तनत पर चिपका रहता है, मगर असल हुकूमत उन तुर्क सरदारों की ही चल रही होती है। इसके बाद 1246 में आया इल्तुतमिश का पोता नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 20 सालों तक भारत पर हुकूमत की और आते ही तुर्क सरदारों की मंडली को सीधा कर दिया। अगले एपिसोड में हम इसी नसीरुद्दीन महमूद की बायोग्राफी कवर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।